مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ عید قربا آئی ہے عید لاہی مومنو ایثار کا پیغام ہے عید لاہی مومنو ایثار کا پیغام ہے عید قربا بالیقین عید قربا بالیقین. جتنی بھی تعریف کر لینا اتنی ہی تھوڑی. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں علم دین کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. یاد کرنے والی چیزیں انسان اگر کتابوں سے وہ یاد کرے تو کئی دنوں میں جو یاد ہوں گی نا چیزیں وہ ایک دن میں یاد ہو جاتی ہیں. یہ فیضان ہے ہمارے امیر اہل سنت کا کہ باتوں باتوں میں اتنی تفصیل سے اور اتنے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے سننے کا. ماشاءاللہ بڑا میٹھا انداز تھا اور قربانی کے بارے میں بھی بڑے میٹھے انداز سے سکھاتے. اس طرح ماشاءاللہ سمجھاتے تھے کہ سمجھ آ جاتی تھی. وقتاً فوقتاً مدنی مذاکرہ اور اجتماع دیکھتا ہوں تو اس میں ماشاءاللہ جو امیر اہل سنت کا ایک طریقہ کار ہے اور اس میں ان کا جو ایک بہت ہی ہمدردانہ اور پرخلوص ان کا جو ایک ماشاءاللہ ان کا ایک طریقہ کار ہے تو اس سے جو ہے ذہن بنتا ہے. اور ماشاءاللہ ان کی شخصیت کو دیکھ کے جو ہے میں کہتا ہوں کہ ایمان جو ہے نا وہ اور پختہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ پیر صاحب کے سمجھانے کے ماشاءاللہ اندر ہوتا ہے 5 دن میں بیٹھ جاتی ہے. ماشاءاللہ نماز کے پیر صاحب سے سوال ہوتے ہیں تو اس میں بہت ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت کچھ پایا, سوچ سے بڑھ کر پایا. ماشاءاللہ یہاں کا ماحول, پہلے نماز پڑھتے تھے 5 وقت کی, اب تہجد بھی پڑھتے ہیں, چاش بھی پڑھتے ہیں. الحمدللہ بہت چینجنگ آ گئی ہے. انشاءاللہ تا حیات یہ جاری رکھیں گے. اللہ کا شکر ہے 1 مہینے میں میں نے جو زندگی میں نہیں کمایا وہ اب شاید کما لیا میں نے. نمازیں میری اچھی ہو گئی, ہر چیز اچھی ہو گئی. یہاں پر آ کے دنیا میں کافی لگا تھا, دین میں نہیں لگا تھا, لیکن یہاں آ کے جو ہے نا جو میں نے دین کی دولت کمائی ہے, دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. اب یہ ہے کہ میں اپنا اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں میرے پرانے جتنے بھی گناہ معاف فرما اور میری کچھ قبر جو ہے میری روشن کر دے اور آخرت سنور جائے. بس ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم بڑوں کی عزت کرنی سیکھی ہے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت پیش آنا سیکھ گئے ہیں, نماز پڑھنی سیکھ گئے. کوئی ہماری غلطیاں تھیں وہ ہم نے درست کی ہیں اپنی. ماشاءاللہ میرے خیال سے جو خوشی اور جو تقویت اور جو اطمینان راہ خدا میں نکل کے ملتا ہے میرے خیال سے وہ چیز بہت مشکل سے نصیب ہوتی ہے. ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں جو گھر میں کرتے ہیں, لیکن اس بار کافی مختلف ہے اور اس بار سکون کی کیفیت بہت زیادہ ہے. یہ سب بڑے محبت بڑے انداز سے سمجھاتے ہیں کہ بھائی دین کا کام کریں, دین کا کام کریں تو 12 ماہ کریں. ماشاءاللہ میرا ذہن تو 12 ماہ کا ہے لیکن کچھ کر کے معاملہ اس وجہ سے 12 ماہ نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو 12 ماہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کی ذات ہمیں سیکھنے کا موقع دے رہی ہے اور کچھ ہدایت کا موقع مل رہا ہے. پیر صاحب کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں اللہ پاک ان کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے. میں نے پکے دل کی نیت کی ہے کہ ہر 3 دن لازمی لگانے ہیں اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ہو سکتا ہے میں کوئی نظام بنا کے نا تھوڑا سا تو 12 ماہ کے لیے میری کوشش ہے, لیکن 3 دن کی جو نا ہر مہینے میں یہ میری پکی نیت ہو چکی ہے. میں انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں جو ہے امیر اہل سنت نے ہم لوگوں کا ذہن بنایا ہے کہ کھالیں جو ہے وہ اکٹھی کرنی ہیں. بہت اچھی بات ہے, ہمیں آگے اچھا لگ رہا ہے. یہ میرا تو دل چاہ رہا ہے میں یہاں رہوں, یہاں سے جاؤں نہیں. میری زندگی میں بتا رہا ہوں میری میرے سے بولا نہیں جاتا. علم کی کمی ہم میں بہت ہے. ہمارے اندر علم نہیں ہے, دین کا علم نہیں ہے. دنیا علم ہے لیکن ہم نے دین میں بہت پیچھے رہ گئے, شاید پیسوں کی دوڑ میں یا کسی چیز کی دوڑ میں. اب ہمارے کو ایک خیال آ رہا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا, اب مجھے کرنا ہے. اب جتنے بھی دن بچے میں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا, انشاءاللہ ہر چیز وہ کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو. اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے, معافی مانگتا ہوں اپنے. عشق نبی سے گئے بھرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1446 ہجری کے ذی الحج شریف کی آج 11ویں شب ہے. اس کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کے سبب 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا. اب سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کھالوں کی حفاظت. انٹرنیٹ سے لی گئی معلومات کے مطابق 2024 میں پاکستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر تقریباً 6.23 ملین یعنی 62,34,700 جانوروں کی قربانی دی گئی، جن کی کھالوں کی مجموعی مالیات 8 ارب روپے سے زائد رہی. قربانی کے جانوروں میں گائے 28,60,000، بھینس 1,65,000، بکری 33 لاکھ، بھیڑ 3,85,000، اونٹ 98,700 شامل تھے. کھالوں کی قیمتوں میں کمی اور مناسب دیکھ بھال کی کمی کی وجہ سے تقریباً 40% کھالیں ضائع ہو گئی، جس سے چمڑے کی صنعت کو نقصان پہنچا. عید الاضحیٰ کے دوران چمڑے کی صنعت کو خام مال کا تقریباً 20% حصہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اس سال یہ تناسب مزید کم ہو سکتا ہے. یہ معلومات پاکستان ٹیزز ایسوسی ایشن اور دیگر ذرائع سے لی گئی ہے. نمبر 1، لوگوں کو ترجیح جانور سے حاصل ہونے والے گوشت میں زیادہ ہوتی ہے اور کھال ایک ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. امیر اہل سنت قربانی کے جانوروں کی کھالیں محفوظ کرنے کے لیے ایسے اقدامات ارشاد فرما دیجیے جس سے کھال خراب نہ ہو اور بعد میں انہیں بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے. ماشاءاللہ واقعی کھالیں تو برباد تو بہت ہو رہی ہیں، اور اس کا یہ کہ اس کو دھوپ میں نہ رکھا جائے، کھال کو چھاؤں میں رکھا جائے. دوسرا یہ کہ پلاسٹک کی تھیلی میں یا کسی بھی ایسی تھیلی میں بند نہ کر دیں کہ جس سے اس کو ہوا نہ لگے اور اندر نمی جمع ہو جائے اور وہ کھال کو گلا سکتی ہے. اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ فوراً اس پر نمک لگا لیا جائے. نمک لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نمک سے بالکل یہ اتنی بھاری مقدار میں نمک ڈالنا پڑے گا. خالی یوں تیل کی طرح چپڑ لینے سے کام نہیں چلتا. کونے کھانچے جتنے بھی کھال کے ہوتے ہیں اس سب میں ڈالنا ہوگا. پوری کھال پر نمک لگانا ہوتا ہے. جو کٹا ہوا حصہ ہے اس پہ سب پہ نمک لگا دیں گے نا تو انشاءاللہ یہ پھر خراب نہیں ہوگی. اور اس کو پھیلا کر رکھیں اور چھاؤں میں، دھوپ میں نہیں، کیونکہ وہ جو اس طرح کی خراب کھال ہوتی ہے نا اس کی پھر مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مزید یہ کہ جلدی جلدی جس کو دینی ہے اس کو پہنچا بھی دیں.
अपने पास रखी रह जाती है, फिर उसकी बेहतियाती होती है, कभी बिल्ली कुत्ते भी उसमें से खा लेते होंगे तो यूं भी उसकी वैल्यू कम हो जाती होगी। इस तरह मतलब बड़े जानवर की दुम अगर चमड़े समेत अलग कर ली तो भाव कम हो जाएगा, इसकी सिरी बड़े जानवर की खाल समेत अलग कर लेंगे तब भी खाल का दाम कम हो जाएगा। इसी तरह जो माहिर होते हैं खाल उधेड़ने के, जो माहिर कस्साब, तो उनसे ही कुर्बानियां करवाई जाएं, वरना दूसरे जो होते हैं वो खाल को टक काफी लगा देते हैं, बाज़ औक़ात जगह जगह कट लगा देते हैं, इसको ये लोग टक बोलते हैं। तो कट नहीं लगने चाहिए, खाल में कट लगा उसके दाम में कट लगा। इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए खाल की कि ये वाकई इससे हमारी मतलब ये कि हर एक चीज को नुकसान से तो बचाना है ना, हमारे फायदे हैं, हमारे मुल्क के भी फायदे हैं कि इससे ज़र मुबादला हासिल होता है। बहुत सारी चीजें खाल से बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है खाल से। खुद जूते चप्पल आप में से बहुत से पहनते होंगे तो खाल से बनते हैं, खाल से भी बनते हैं। तो अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए कि हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करना सीखे। हम समझते हैं भाई अपने को क्या करना है, दे देना है ना, तो राह खुदा में भी दे तो अच्छी चीज़ दे ना, न कि खराब करके दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ईद कुर्बाई है, ईद कुर्बाई है, ईद कुर्बाई है। अमीर अहले सुन्नत वक्त के कांटे तो नहीं खा सकते, लेकिन हमने सुना है कि ऊँट खा सकते हैं, तो ऊँट को खिलाएं तो उसको तकलीफ तो नहीं होगी। ईद कुर्बान आई आई, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान आई आई, ईद कुर्बान। आप हमारी रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। माशाअल्लाह। हाँ, ऊँट जो है ना वो कांटेदार ग़िज़ाएं खाता है। ये रेगिस्तान का जहाज है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। तो रेगिस्तान में इसको नरम नरम हरियालियां कहाँ मिलेंगी, कांटेदार घास। अल्लाह की शान है, उसके मुंह की कैफियत ऐसी है कि वो कांटेदार ग़िज़ा खाता है, उसका मुंह जख्मी नहीं होता। और इसमें हमारे लिए याद है आखिरत की कि जहन्नमियों को थोहड़ दिया जाएगा, कांटेदार ग़िज़ा, जिसको खा तो नहीं सकेगा मगर वो उसको खाना पड़ेगा। तो जब वो खाएगा तो के गले में फंस जाएगा, थोहड़ तो कहते हैं। तो वो पानी मांगेगा तो उसको एकदम खौलता हुआ पानी, गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। जो उसके मुंह के करीब आते ही उसके मुंह की खाल गल कर उस पानी में गिर जाएगी, और जब वो पिएगा तो उसकी आंतें कट कट के पिछले रास्ते से बह जाएंगी। तो ऊँट के ये कांटे खाने में हमारे लिए इबरत है कि देखो ये खा लेता है, अल्लाह ने इसको ताकत दी है, और जो जहन्नम में जाएगा वो नहीं खा सकेगा कांटेदार ग़िज़ा। अब भी जिंदा इंसान भी नहीं खा सकता, कांटा मुंह में डालेंगे तो चुभ जाएगा, तो मुंह जख्मी हो जाएगा। ये अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियां हैं इसमें भी कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। किसी को नर्म नर्म घास माफिक आता है, किसी को कांटेदार शाखें माफिक आती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान। ये गौर व खौस करते रहने से ये बातें सामने आती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खुश दिली से वास्ते रब के हो जो कुर्बानियाँ, नारे दोज़ख से बनेंगी यार वो कुर्बानियाँ। मेरा नाम माजिद खान है और नॉर्दर्न बाईपास मवेशी दोस्त मंडी मीडिया सेल का मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। हजरत साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मवेशी मंडी में कई नस्ल के ऊँट आए हुए हैं, जिनमें 2 कोहानों वाला ऊँट भी है। क्या 2 कोहानों वाले ऊँट की कुर्बानी करना सही है,
اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی منڈی میں کئی جانوروں پر، جن میں گائے، اونٹ، بکرے، ان پر کئی رنگوں سے نام لکھے گئے ہیں. کیا قربانی کے جانوروں پر نقش و نگاری کرنا اور مختلف رنگ سے نام لکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ دو سوال آپ نے کیے. اونٹ ایک عجیب و غریب جانور ہے، اس میں بھی کافی نشانیاں، اور بندہ اس کو غور کرے تو انوکھا جانور ہے. اس کے لیے قرآن کریم میں بھی آیت بھی ہے، وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اور اونٹ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ اس پہ نظر کرو اونٹ میں کہ اللہ پاک نے اس کو کس طرح بنایا ہے. بالکل انوکھا جانور ہے، دوسرے جانوروں سے بالکل مختلف، اور اتنا مطلب لمبا چوڑا کہ آدمی ڈر جائے، لیکن یہ مانوس ہو جاتا ہے اور لوگوں کے کام آتا ہے، سواری کے کام آتا ہے، مال اٹھاتا ہے، بار برداری جس کو بولتے ہیں، بوجھ اٹھاتا ہے، اور لوگوں میں گل مل جاتا ہے ایک طرح سے، کہ رہتا ہے. لوگ پالتے ہیں اس کو گھروں میں مطلب جو بڑی جگہ ہوتی ہیں، اور جو اونٹ کی گاڑیاں چلاتے ہیں سارے وہ گھر میں یا گھر کے باہر ہی باندھتے ہوں گے. گھر یوں ہوتے کہ بعض گھروں میں بڑی جگہ ہوتی ہیں کچی تو اس میں ہی باندھ لیتے ہوں گے. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ اونٹ بھی ایک اللہ کی شان ہے بس. تو اب کسی کا ایک کوہان ہوتا ہے، عام طور پہ ایک کوہان ہوتا ہے، کوہان میں قبر کی یاد ہے. اس طرح دیکھیں آپ باہر اس کی پیٹھ کیسی ہے، جو قبر کی یاد دلاتی ہے. ایسے موقع پر دکھا دیا کرے نا اس میں اسکرین پہ، تو سمجھنا آسان ہوگا. تو دیکھیے یہ قبر کی طرح ابھار ہے ان میں. تو دو کوہان یہ کم ہوتے ہیں، ایک کوہان والا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ ان کو تعجب ہوا ہوگا. تو دو کوہان والے اونٹ کی بھی قربانی جائز ہے، کہ یہ عیب نہیں ہے نا، بلکہ یہ خوبی ہے. آدمی اس کو دیکھ کر ذرا رک جائے گا کہ یہ کس طرح کا اونٹ ہے، کہ ویسے ہمارے یہاں کم دیکھے جاتے ہیں. اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا، نام نقش و نگار، ایک پر منیر احمد لکھا ہوا تھا. تو نقش و نگار کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، زینت ہے، اور خاص کر قربانی کی جانور میں اس طرح کریں گے اس کی تعظیم کی نیت سے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. رائے یہ کہ یہ منیر احمد لکھا ہوا ہے، یہ نہ لکھتے تو اچھا تھا، کیونکہ اب اس میں ذبح ہونا ہوتا ہے، نہر ہوتے ہیں، خون نکلتا ہے، پھر گرتا ہے وغیرہ، پھر کھال نکلے گی تو کھال گھسیٹ کر جائے گی، اس میں خون اور پانی اور گندگی سے بچانا اس کو ممکن نہیں ہے نا. یہ تو اسی سے لت پت ہو کر پھر جا کر اس کی ذباغت ہوتی ہے اور اس کو پروسیس میں ڈالتے ہیں، پھر یہ ایک عمدہ کھال کی شکل میں استعمال میں آتا ہے. تو اس لیے اس پہ حروف نہ لکھے جائیں، بہتر یہی ہے. عید مبارک بھی کبھی لکھتے ہیں دمبے پر، اور اس کو بھی نہ لکھا جائے، حاجت نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عبدالوہاب انصاری ہے. میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال سے کوئی لباس بنوا سکتے ہیں؟ ہاں، اپنے یہاں جیسے قربانی کا جانور ہوا تو اس کی کھال جو ہے نا خود استعمال کر سکتے ہیں، کسی غریب کو، امیر کو، جس کو چاہے دے سکتے ہیں. جیسے گوشت نے جو مسئلہ گوشت کا ہے نا قربانی کے، وہی مسئلہ کھال کا ہے. تو اپنے یہاں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی قربانی کے گوشت اور کھال، ان کو استعمال کرنے کا جو مسئلہ ہے نا اس کو سمجھ لیں کہ اس کو یا تو بے عین ہی ایز اٹ از اس کو استعمال کریں، جیسے سکھا کر مسلح بنا لیا، یا یہ لباس پہنیں گے کھال کا، یہ شاید کہ پہننا چاہتے ہیں تو چلو یہ بھی اجازت ہے. اچھا، اب اس کو بیچ دیا اگر، تو اب اس کی رقم استعمال نہیں کر سکتے. اس کو
जैसे अब खाल ही का मसला, तो गोश्त तो कोई बेचता नहीं है आमतौर पर, अपनी कुर्बानी कौन बेचेगा। खाल अगर बेच दी तो अब ये इसको सदका करना होगा, ये अपने इस्तेमाल में इसकी रकम नहीं ला सकेगा। अच्छा, और अगर ऐसी चीज में बेचा, ऐसी चीज में तब्दील किया, मिसाल के तौर पर तस्बीह ले ली खाल देकर, तो ये तस्बीह या पतीला या प्लेट, यानी ऐसी चीज, किताब, ऐसी चीज इस खाल के बदले में ले ली कि जिसको बाकी रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे फायदा उठाया जा सकता है, तो जायज है और ये अपने पास रख सकता है। जायज वो भी है, पैसों के बदले में बदली किया, जैसे बेच दिया इसको, तो खालें आखिर बेची ही जाती हैं कि बाद वो ऐसा होता है कि खाल पहुंचा नहीं सकते, यहाँ पहुंचा नहीं, तो बेच लिया, अब रकम रख ली, तो अब रकम खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब ये किसी गरीब मिस्किन को सदका करना होगा। और अपनी जात के लिए इस नियत से बेचा कि मैं इसके पैसों को इस्तेमाल करूंगा, तो गुनाहगार होगा। लेकिन इसलिए बेचा कि अब चूंकि कोई उठाने आ नहीं रहा, खाल खराब हो जाएगी मसलन, या कुत्ते बिल्ले नोचते हैं, बाजू का कुत्ते बिल्ले नोचेंगे इसको, अगर आप इसकी हिफाजत नहीं करो खाल को नुकसान होगा, या गर्मी है खराब हो जाएगी वगैरह, तो अब इसको बेच दिया इसलिए कि मैं वो फुला को दे दूंगा। तो अब इस तरह बेचने में, यदि अगर इदारे को देना चाहे तो भी बेच सकता है ना, तो इदारे को देना, दावत इस्लामी को मसलन देनी है और ये आए नहीं अभी तक लेने के लिए, चलो भाई बेच के पैसे इनको दे देंगे, तो ये जायज है। और अपने लिए अगर करना है तो ऐसी चीज से बदलने की इजाजत है जिसको बाकी रखकर, जैसे मैंने चंद चीजों की मिसालें दी, पंखा लगाना है इसलिए पंखे के बदले तब्दील कर लिया, पंखा भी बाकी रखकर ही नफा उठाएंगे ना, वहां खाएंगे ना, तो जायज। हाँ, पैसों से बेचकर पंखा नहीं ले सकता, पंखे के बदले खाल, खाल और पंखा ये तबादला हुआ। तस्बीह की मिसाल दी तो तस्बीह और खाल का तबादला हुआ, यानी कि पैसे लेकर अब तस्बीह ले आऊंगा तो नहीं कि पैसे हलाक करके नफा उठा दे। इसी तरह तो आपने गल्ले के बदले बेच दिया अनाज, तो अनाज के बदले भी बेचा तो अनाज को वही सदका करना पड़ेगा, क्योंकि अनाज को बाकी रखकर नफा नहीं उठाया जा सकता जब तक आप इसको खाएंगे नहीं, तो इसलिए अनाज के बदले भी इसको तब्दील नहीं कर सकते। हर वो चीज कि जिसको हलाक करके नफा उठाया जाता है, खत्म करके, उस चीज से आप नहीं बदल सकते। और हर वो चीज कि जिसको बाकी रखकर नफा उठाया जा सकता है, तो वो उसके बदले अपनी खाल जो है कुर्बानी की, उससे आप तब्दील कर सकते हैं, इन मानों कर बेच सकते हैं। बेचना खाली रकम के बदले नहीं होता, चीज के बदले भी होता है। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। हजरत साहब, मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी खाल बेचकर मस्जिद इमाम या मौज़िन को तनख्वाह दे सकते हैं? वाह, इमाम की नीयत से बेचा, गरीब, अच्छा तनख्वाह पूछा ना आप, मैं समझा नहीं। अच्छा, हाँ, ये आप अपनी कुर्बानी की खाल बेचकर तनख्वाह देना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। तनख्वाह अपने जैसे जो अंदाज है अपने पल्ले से या चंदे से वो उसको दी जाए, बाकी खाल उनको तोहफतन पेश कर दी जाए, इमाम साहब को दे सकते हैं। इमाम हो, मुक्तदी हो, मौज़िन हो, आपका भाई हो, खाल हर मुसलमान को दे सकते हैं। हमारे इदारों को देने का एक रवाज है और लोग समझते हैं कि और कुछ इसका नहीं कर सकते, ये देना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं। ये मसला मैंने बताया, ज़रा खाल रखता कौन है? खाल को रखकर इसको मतलब आप इस्तेमाल थोड़ी कर सकते हैं। आप बोलोगे मैं धूप में सुखा दूंगा तो फिर फेंकने का धक्का होगा, आपको काम नहीं आएगी। ये बाकायदा मशीनों से गुजार कर इसको प्रोसेस से करते हैं और फिर इस्तेमाल की। जैसे यहाँ खाल है कि नहीं, ये खाल है ना, तो ये कोई, हाँ ये बैठे हुए ये निकाली, तो ये अपने दिखाओ कैमरे में। तो ये खाल जैसे इस भाई बैठते हैं, शायद इनको आजिज़ी दरकार होती होगी खाल, तो ये मतलब खाल पर, बकरे के खाल पर बैठने से आजिज़ी आती है, तवाज़ो आती है, और चीते की खाल पर बैठने से तकब्बुर आता है। चीता खूनखार जानवर है, ये बकरी ये
आजिजी की निशानी है। या आजिज और मतलब ये कि आम तौर पे ये जानवर जो शरीफ होता है, लोगों पर बिला वजह हमले नहीं करता। जैसे कि वो आपने सुना होगा जो डरपोक होता है उसको बोलते बुज़दिल। बुज़ मने बकरी, दिल मने दिल, ने बकरी का दिल जैसा ही है, हिम्मत वाला नहीं है। शेर है शेर, हिम्मत वाला है। तो बहरहाल ये कि खाल को प्रोसेस से गुजारना होता तो ये समझो बिकाती ही पड़ जाएगी आपको तकरीबन। जितने की खाल है उतना शायद खर्चा हो जाए, हो सकता है उससे ज्यादा भी इन दिनों खर्चा हो जाए। एक दिन में देंगे भी नहीं, शायद तो चंद रोज इस प्रोसेस से गुजार कर ये नमक लगाएंगे, फिर जो भी करेंगे ये तो पैसे लेते हैं। ये खाल जो है ना ये भी प्रोसेस से गुजरी हुई। मेरा नाम अब्दुल राफे है। मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी का जानवर का गोश्त फरोख्त करना कैसा है? भैंस कानून से मोहम्मद जवाद। मेरा सवाल अमीर सुन्नत से है, कुर्बानी के जानवर में से अगर चर्बी ज्यादा निकले तो क्या बेचना जायज है? कुर्बानी के गोश्त, पोस्त, मुंडी, पाए, चमड़े, पोस्त चमड़े कोई बोलते हैं और गोश्त पोस्त बोलते हैं। तो गोश्त, पोस्त माने चमड़ा, स्किन, इन सब का एक ही मसला है। तो इनको मतलब यानी कि अपने लिए बेचेंगे तो गुनाहगार होंगे। जिसको दे दिया तोहफा दे दिया किसी को गोश्त उठाकर या चमड़ा उठाकर, तो वो अपने लिए बेच सकता है, क्योंकि अब वो आपका ना रहा ना, अब उसका, वो जो चाहे करे। यही ना। और एक ने चर्बी का भी यही है कि आप खुद इसको अपने लिए बेच नहीं सकते, जायज नहीं। अब ज्यादा चर्बी तो इन दिनों तो होते ही चर्बीले जानवर है, ये जो तगड़े तगड़े जानवर होते हैं, क्या चर्बी बहुत होती है इनमें। चर्बी हजम करने के लिए अगर यूं कहूं कि भाई किसान का मैदा चाहिए, तो अब ये भी शायद सही रहा नहीं है। पहले था, अब नहीं है। अब किसान भी मशीनें चलाता है, पहले खुद हल चलाता था। तो वारा लोग जो बेगारी का काम करते हैं और लोडिंग अनलोडिंग करते हैं जो मजदूर, ये इनकी ग़िज़ाएं चर्बी और ये लक्कड़ हजम, पत्थर हजम। हमको तो सब्जी भी हजम करना मुश्किल होता है। कहा के बैठ गए, नमाज के लिए जा रहे हैं हम तो स्कूटर पे गए, ऑफिस पे तो कार पे गए। एक ईसाई भाई ने बड़ी प्यारी बात बताई मुझे आज। एक ईसाई भाई है, तो वो उसको कहा गया भाई स्कूटर क्यों नहीं ले लेते हो, थोड़ा होंगे खर्चा हो जाए, कर सकते होंगे, स्कूटर नहीं ले लेते। तो बोला मैं यार दुकान तक या अपने दफ्तर तक जाता हूँ, 20-25 मिनट लग जाते हैं मुझे, लेकिन मैं रास्ते में किसी को सलाम कर दूंगा, किसी को मतलब यानी कि नेकी की दावत दे देता हूँ, मुलाकात कर लेता हूँ, इनफरादी कोशिश का मौका मिलता है। स्कूटर में क्या बैठे, किक मारी, फुर्र करके 2 मिनट में पहुंच गए। तो रास्ते में कोई दीन का काम नहीं कर पाए। बड़ी प्यारी सोच है। एक दौर मेरा था, मैं बहुत पहले दावत इस्लामी शुरू नहीं हुई थी, मेरा लड़कपन था, तो मैं भी जहां जाता था मैं क्लिनिक पर था, और क्लिनिक हमारे घर से 1 मील तो दूर होगी, शायद ज्यादा होगी। तो मैं जरा पैदल ही जाता, स्कूटर क्या, मेरे पास स्कूटर कैसी, मुझे अब तक स्कूटर चलाना नहीं आता, स्टार्ट करना ही नहीं आता। कार ड्राइव करना आती है, बंदा चलाना सीख रहा हूं। गाड़ियां चलाने वाले बहुत है अपने पास, ड्राइवर ही ड्राइवर है, कोई भी कार में बिठा लेता है बेकार आदमी को। पहले स्कूटर पर मुझे ले जाते थे बयानात करने के लिए, तो यूं मतलब मेरे को सब अवेलेबल हो जाता था, मुयसर हो जाता था। तो खैर, तो मैं जाते जाते बहुत मेरी धुन होती थी, जो सामने आता था अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये करता था, ये धंधा करता था मैं। वो पुरानी बात बता रहा हूँ, सलाम का जज्बा मेरा बहुत पुराना है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बातें बताने में ये कि थोड़ा जो मोहब्बत करते ना बाजू का, तो उसको अमल में लाने की कोशिश करते होंगे, करनी भी चाहिए। अच्छी बात में मतलब पैरवी करने में अच्छा ही है ना।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बगैर फ्रीजर के गोश्त महफूज रखने का तरीका। गोश्त के किलो किलो के शापर बना लें। शापरों पर हल्की सी गांठ लगा दें, लेकिन हवा लगती रहे। अब शापर उन घरों में पहुंचा दें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। ये गोश्त क़यामत तक खराब नहीं होगा। अमीर अहले सुन्नत, इस तहरीर के बारे में आप क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। आखिर में जो है ना वो मदनी फूल है। शुरू में आदमी चौंकता है, देखे यार ये कौन सा तरीका है, गोश्त मतलब बगैर फ्रीज के भी खराब नहीं होगा। वो समझदार आदमी ने किसी ने बनाई है, बहुत बेहतरीन है ये, और ये हकीकत भी है कि जो हम गोश्त कुर्बानी का गरीबों को देंगे वो खराब नहीं होगा। लालच में अगर अपने फ्रिज में भर देंगे टांस टांस के, बिजली ट्रिप हो जाएगी या फ्रिज जो है ओवरलोड होकर दम तोड़ जाएगा, तो ये गोश्त निकालना मुश्किल हो जाएगा। फेंकने के लिए निकालना बहुत मुश्किल है, चिपक जाएगा और आजमाइश हो जाएगी। तो इसलिए अपने फ्रिज में भरने से के बजाय गरीबों के पेट में भर दिया जाए तो ये महफूज हो जाएगा। तो बहुत प्यारी, माशाल्लाह बहुत प्यारी पोस्टर मुझे आज शाम को रात को मिली है शायद, तो मैंने फौरन भेज दी मदनी चैनल को, मुझे बहुत अच्छी लगी। मदीना मदीना ये बन के आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक में बकरी ज़बह की गई और उसका सारा गोश्त तकसीम कर दिया गया, मगर कंधे का गोश्त, शोल्डर का गोश्त रख लिया गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पूछा मा बक़िया मिन्हा, ऐ आयशा बकरी के गोश्त में कितना बाकी बचा? मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा गोश्त बांट दिया, बस कंधे का गोश्त बाकी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकिया कुल्लहा गैर कतिफिया, बकिया कुल्लहा गैर कतिफिया, सारा बच गया है, कंधे के गोश्त का एक टुकड़ा जो तकसीम नहीं हुआ वो नहीं बच सका। कितनी गहराई है इसमें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जो राय खुदा में सदका दे दिया गया वो बाकी और लासवाल हो गया, और जो अपने खाने के लिए रखा गया वो हजम होकर फड़ा हो जाएगा। वही बात आ गई ये पोस्ट वाली मैंने कि ये बाकी रहेगा जो हमने गरीबों को दे दिया, राय खुदा में दे दिया। तो ये हदीस पाक हवाला तिरमिजी किताब सुफ़तुल क़ियामा सफ़ा 586 हदीस नंबर 2470 बितसर्रुफ़ क़लील। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद अशफाक अत्तारी अर्ज गुजारूं। अमीर अहले सुन्नत, आपके हुक्म पर अभी हम मगरिब के बाद एक जानवर लेने गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जानवर कुछ 5-10 हज़ार ऊपर ही देखे। उनकी दिलजोई के लिए बेचारे बहुत परेशान थे, जो व्यापारी थे। काफ़ी तादाद में जानवर बच गए और वाकई आधी कीमत में दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी एक जानवर खरीद लिया। अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए। आप दुआ बेहिसाब मग़फ़िरत से नवाज दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह आवाज़ तो पहचानते होंगे कुछ न कुछ सही हुई। हाफिज अशफाक मदनी मदनी चैनल के मोबाइल है, तो वो तरगीब दिलाई थी ना कि हो सके तो कुछ ज़्यादा देकर पैसे। मैंने चंद बार किया ऐसा, कुर्बानी का जानवर खरीद तो ज़्यादा पैसे दे के आ गया हूँ, बोल के मैं कुछ ज़्यादा नहीं लोगे, इस तरह बार्गेनिंग करके और ज़्यादा करवा के अल्हम्दुलिल्लाह लिया है। तो जब जाता था, अब तो खैर अब जा नहीं पाता, तो इससे क्या वो बहुत खुश होता है आदमी कि यार दूसरे बिल्कुल कान खा जाते हैं, कम करो, झूठ बोलते हैं, उधर तो इतने का मिल रहा था, इधर तो इतने का मिल रहा था, तो तुमने बहुत महंगा वगैरह। तो दिल आज़ारी की सूरतें बन जाती होंगी इसमें, और झूठ भी। तो ये कि ऐसा भी कोई हो कि जो
कुछ ज़्यादा ही देकर खुश कर दे, इनकी थकान उतार दे। और आजकल इनकी थकान उतारने की ज़रूरत है, ये बेचारे बहुत परेशान होंगे। जिनसे बन पड़े वो ज़रूर एक आध जानवर लेकर राय खुदा में कुर्बान कर दे। अल्लाह ने बहुत दिया, जिनको दिया है अरबों खरबों रुपए, वरना ये बाजों के तो दिल के दौरे पड़ गए होंगे। उधार सुधार लेकर ये लाखों करोड़ों का माल लाते हैं बेचारे, किधर किधर से इनको ले जाना आसान नहीं होता वापस, और ले जाकर रखें का, फिर आइंदा साल तक रखेंगे तो फिर लाखों रुपए इन पे खर्च होगा, फिर इनमें जख्मी होंगे तो बीमार होंगे तो मर जाएंगे। तो ये बहुत आजमाइश संभालना, जिंदा जानवर को हर एक नहीं संभाल सकता। तो इनसे कुछ ना कुछ मतलब बोझ उतारना चाहिए, इनका ये सवाब का काम है। ज़रा हमारे भाई ये भी मुसलमान भाई बेचने वाले, अब ये बोलोगे ये यूं करते हो, लूट मार करते हो, तो आप नहीं करते। जो भी ताजिर है, दुकानदार है, मैं जनरल बात करता हूँ, सबको पैसे चाहिए, और जिस तरह वो बार्गेनिंग कर रहे होते सब जानते होते, तो खाली ये क्यों खराब मवेशी बेचने वाले। हम अपने को देखें ना, तो कुछ भी हमसे भी कोई, हम जैसे भी हमारे करतूत हो, कोई हमसे हमदर्दी करेगा तो अच्छा तो लगेगा ना, दिलजोई तो होगी। कोई दिलजोई करेगा हमारा अल्लाह के लिए तो सवाब का हकदार तो बनेगा ना। इस वक्त ये तकलीफ में हो सकता है हमारी इस दिलजोई की वजह से अगर कोई गलत अंदाज है भी तो सही हो जाए, उसको अल्लाह करे कि मतलब इसका फायदा तो होगा नहीं। हमने मदनी चैनल पर इनकी हिमायत का ऐलान किया, यानी हमदर्दी में, और ढारस दी और दुआएं दी। ये 2-3 दिन से हमारा सिलसिला चल रहा है कि अल्लाह बेचारों पर रहम करे, सब्र तक। तो ये जैसे अब भी एक क्लिप आपने सुना, और भी इस तरह के इक्का दुक्का हुए कि जो लेने गए, वो पैगाम दिया। बाकी सब तो पैगाम दे भी नहीं सकते ना, न सबको सोचना पड़ता है, लेकिन उम्मीद है कि औरों ने भी इस तरह खरीदे होंगे जानवर हमारे कहने पर, दरखास्त पर। तो इस तरह किसी का दुख बटाना ये सवाब का काम है, हमको दुख बटाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पुलिस वाले बदनाम है, कि सुबह कहा था आप लोग, तो पुलिस वाले बदनाम है, सब मतलब इनको बुरा बोलते हैं, लेकिन मैंने पुलिस वाले देखे तहज्जुद पढ़ते हुए। कई पुलिस वाले आपको मिलेंगे 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। तो हर एक रिश्वतखोर थोड़ी होता है यार, हर एक बुरा होता है। हम अब बोलो यार शेख अपनी देख, एक उंगलियां हम उठाते हैं, दूसरी तरफ 3 उंगलियां अपनी तरफ आ रही है कि अपने को देख, ये ऐसा। तो ये उंगलियां दिखा रही हैं अपने आप को कि तू कैसा। तो पांजी करो तो सांझी थी, ये मेमनी कहावत है। अपनी करो तो शाम हो। दूसरों के ऐब तलाश में लग जाएंगे तो हम अपने ऐबों को कब दूर करेंगे। हम खुद ऐबों से भरे पड़े हैं। अल्लाह पाक बस हमको समझ अता फरमाए कि दूसरों की टटोल में ना पड़े, अपनी इस्लाह में वक्त सर्फ करें। न गीबतों, तोहमतों, बुराइयों, बदगुमानियों से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये हमारी रविश रही ना कि सबकी टोह में पड़ते रहे। तो इससे जो हमारी वीडियो वायरल हुई है, पता चला है, आज भी किसी से बात हो रही थी कि इससे और भी तबकात में सराहा गया है। और मुझे लगता है कि शायद ये आज का हमारा ये कहा हुआ इस साल भी और आने वाले साल भी शायद ज़्यादा फायदा देगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो। बस ये कि मवेशी फरोश भी जो है ना, बेचने वाले भी, अल्लाह करे कि इन पर भी कोई असर पड़े ना इसका। ये देखो ये कैसी आजमाइश आई। हो सकता है हमें तो ये इनको ये सोचना चाहिए कि हमारे गुनाहों की सजा हो, या बाजों के गुनाहों की सजा। जब ये होता है कि दूसरों को भी इसका असर तो पहुंचता है। जैसे कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का ग़ालिबन इरशाद है कि लोगों के जुल्म की वजह से बटेरें अपने घोंसलों में मर जाती हैं। अब इनका क्या कसूर है बटेरों का, लेकिन इसकी नौसत होती है। जैसे लोगों के गुनाहों की वजह से जलजला आता है, तो हर फर्द तो गुनाह नहीं कर रहा होता ना, नेक लोग भी होते हैं इसमें, लेकिन वो भी उसमें जलजले की लपेट में आ जाते हैं। तो इसके बारे में मजीद हदीस है कि जो इस तरह मतलब यानी जलजले में या जो गुनाहगार नेक, तो हर एक अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक या अपनी अपनी नीयत के मुताबिक उठाया जाएगा। तो मौत तो सबको आनी है। तो खाली गुनाहगारी जलजले में फौत होगा ऐसा नहीं है, निकोकार भी होते हैं। ये होता है मतलब उनके दर्जे बुलंद होते हैं। जो नेक आदमी तकलीफें उठाएगा या दूसरों की वजह से उस पर कोई आफत आ भी गई तो इसके दर्जे बुलंद होंगे। तो ये मुमकिन है कि ये
جب ایسا حالات پیدا ہوتے ہیں نا تو لوگ سوچتے ہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں بیپاری لوگ بھی, یار وجہ کیا بنی. یہ وجوہات پر بھی غور کریں گے, ان کو وجوہات پر غور لازم کرنی چاہیے. یہ ان کے بزنس کو آگے بہتر کرنے کے لیے اور کاروبار کو نقصان سے بچانے کے لیے بہت ضرور. کاروباری لوگ بیٹھتے ہیں جب لاس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے, ٹائمنگ کے پرابلم تھے, ریٹ کے پرابلم تھے, یا کیا پرابلم تھے. یہ ایک بزنس اسٹریٹجیز ہوتی ہیں یا کاروباری طور پر دیکھنا ہوتا ہے. ہوتا تو وہی جو اللہ چاہتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو اللہ آپ کو منظور ہوتا ہے. لیکن اگر یہ گوشت, یہ جانور بیچنے والے آپس میں بیٹھ کے کوئی مشاورتیں کریں گے نا تو شاید ان کو اندازہ ہو جائے گا انویسٹر انوالو ہوئے یا کیا تھا یا کیا نہیں تھا. تو کچھ اپنے اعمال, گناہ, ان تمام پر پہلو پر غور کرے. کاروباری طور پر کوئی حکمت, کوئی مصلحت چک گئی ہے اس پر غور کریں, یا لوگوں کی خیر خواہی کے طور پر کوئی کمزوری آ گئی اس پر غور کریں. تو یہ 8-10 پوائنٹس ان کے سامنے شاید آ جائیں گے کہ یار یہ شاید وجہ بن سکتی ہے. ان میں اپنے اعمال کو تو سر فہرست رکھنا چاہیے, ظاہر ہے. اب آتے سال غور کریں کہ یار یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ شاید فرق پڑے گا. جو ہوا تو اب تو ہو گیا, آئندہ سال کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. سارے نمازی بن جائیں اور یہ فائنل ڈیسیجن لے لیں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ دیکھنا رنگ بدل جائے گا. جھوٹ بولنا چھوڑ دینا تو لاکھوں گنا چھوٹ جائیں گے کہ جھوٹ نہیں, خلاص جھوٹ نہیں, میرا اتنے کا خرید ہے, میرا اتنے کا خرید ہے, میں اتنا مطلب اور چل رہی ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ گھر کا پلا ہے, اپنی اولاد کی طرح میں نے پالا. حالانکہ کل تو یہ دوسرے سے سودا کر رہا تھا, سودا کر کے رسی پکڑ کے لایا, بولتا ہم نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے. تو ایسے سے ہی بول بچن دے رہے ہوتے ہیں اور گاہک بھی سمجھ رہا ہوتا ہو کہ یار اب سمجھے میں کتنوں کو ٹھگ چکا ہوں, تو مجھے ٹھگنا چاہتا ہے. تو یعنی دونوں طرف سے بچتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. تو یہ سچی توبہ کر لیں جو ایسا کرتے ہیں. میں نہیں کہتا ہر مویشی فروش ایسا کرتا ہے, تو سب سچی توبہ کریں, نماز کا بالکل عہد کریں. یہ نہیں کہ بقرعید کے دنوں میں نماز پڑھیں گے, سارا سال پڑھنی ہے, نماز پڑھیں اور ہمیشہ. یہ اگر فائنل ہو جائے نا, جو بھی مسلمان یہ ذہن بنا لے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آپ دیکھنا اس کا نقشہ بدل جائے گا. کاروبار جھوٹ نہیں, نوکری میں جھوٹ نہیں. بھائی آپ دیر سے کیوں آئے, نوکر کو سے پوچھے گا وہ ذرا آج طبیعت سست ہو گئی تھی, حالانکہ ایسا نہیں تھا, کسی اور وجہ سے ہوا تھا. تو اس طرح اور کئی باتیں جس میں لوگ جھوٹ بہت بول رہے ہیں. تو یہ چھوڑ دیں گے نا, اللہ کرے گا تو ہمارا معاشرے کا نقشہ بدل جائے گا. نہ بدلے تو مجھے کہنا, انشاءاللہ نیت کریں. اب تک جتنے جھوٹ بولے اسے سچی سب توبہ کریں. حاضرین ناظرین, اور اب سچ بولنے کو اپنا لے کہ سانچ کو آنچ نہیں ہے. ورنہ یہ کہ ایک کے گناہ کا دوسرے کو, اور جو بات ہوئی تھی اس پر یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ ظالم صرف اپنی ذات ہی کو نقصان دیتا ہے. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم, حتیٰ کہ بٹیریں اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے دبلی پتلی ہو کر مر جاتی ہیں. حوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 7479, اس کی شرح ہے. یعنی جب ظلم بڑھ جاتے ہیں تو بارش بند ہو جاتی ہے, جس سے چڑیاں حتیٰ کہ بٹیریں بھی بھوکی پیاسی مر جاتی ہیں. مرآت المناجی, یہ اس کے شرح میں نے عرض کی آپ کو. تو بہرحال یہ کہ بارش جب بند ہوگی تو نیک آدمی کو بھی تکلیف ہوگی, گناہگار کو بھی تکلیف ہوگی. لیکن یہ ہوا ظالموں کی وجہ سے, لیکن جو مظلوم ہے تکلیف میں وہ بھی آئے تو ان کے درجے بلند ہوں گے, ان کے لیے سزا ہے. تو ان کے لیے ایک طرح کے مطلب ہے کہ جزا بڑھنے, جزا تو بدلا نہیں, ان کے درجے بلند کرنے ہونے کی صورت یہ سبب ہے. بھلائی کرو اس کے ساتھ جو اس کا اہل ہو, اور اس کے ساتھ بھی جو اس کا اہل نہیں. اور اگر کوئی بھلائی کا اہل نہ بھی ہو تو تم اس بھلائی کرنے کے اہل ہو. تم تو بھلائی کر سکتے ہو نا, وہ بھلائی نہیں کرتا تو یعنی کہ مطلب جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ہمیں دعوت نہیں دی ہم نہیں دیں گے, میرے ساتھ ایسا کیا میں بھی نہیں چھوڑوں گا. نہیں, وہ پتھر مارے
آپ پھول بڑھا دیں, دیکھو آپ کا دوست بن جاتا ہے کہ نہیں. اور یہ اپنی طرف سے ساری باتیں نہیں, ہمیں قرآن و حدیث میں یہ درس دیے گئے. قرآن کریم ادفع باللتی ہی یا احسن, اے سننے والے برائی کو بلائی سے ٹال. تو قرآن کا حکم ہے, جو ہمارے ساتھ برائی کرے گا اس کو بلائی سے ہم ترکیب بنائیں اس کی. تو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے, وہ دشمن دوست ہو جاتا. آگے آیت میں ہے بھی کہ دشمن پھر ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. یہ کرنا نہیں آتا نا, ہم تو مطلب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے لوگ ہیں بھائی. ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, اور ہے نا بولتے ہیں نا بدماش کے ساتھ بدماش, یہ بولتے ہیں. اور یار مطلب کیا بدماش کے ساتھ بدماش ہو, بدماش کیسا ہوتا ہے یار, خالی وہ ایک چیخ مارے تو کچھ کر دے, تو خالی ہوشیاریاں کرتے ہیں بدماش بدماش. تو بدماش نہیں بننا, وہ شریف بننا ہے. شریف کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, سمجھو یوں سمجھ لو. اور جو بدماش ہے اس کے لیے جہنم منتظر ہے. آپ کو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے ہمیں الحمدللہ. تو مارے کھائیں گے, مظلوم بنیں گے تو جنت میں جائیں گے. ظلم سہیں گے تو, اور ظلم کریں گے تو ظلم یہ آخرت کا اندھیرا ہے اور جہنم کے عذاب, اور دنیا میں بھی آفتیں اور مصیبتیں. اور ظالم ایسا منحوس شخص ہے کہ اس کی وجہ سے جو بیچارے غیر مظلوم یا عام آدمی ہے وہ بھی تکلیف اٹھاتا ہے. جیسے بارش بند ہونے کی مثال ہوئی, جیسے بے زبان چڑیوں اور بٹیروں کی بات ہوئی کہ یہ مر جاتی ہیں ظالم کے ظلم کی وجہ سے. ایسا منحوس آدمی ہے. تو ظلم سے بالکل اپنے کو دور رہنا ہے, نہ ظلم کرنا, نہ ظالم کا ساتھ دینا ہے, نہ ظالم سے دوستی کرنی ہے. نہیں, ہم بھلے ہمارے عاشقان رسول بھلے جو ہمیں دین کا راستہ بتاتے ہیں, جو ہمیں مسجدوں میں لاتے ہیں, جو ہمیں نمازیں سکھاتے ہیں, جو ہمیں قرآن کریم سکھاتے ہیں, اور ہمیں بھلائی کی باتیں بتاتے ہیں, اور ہمیں جنت کا راستہ چلاتے ہیں, اور مدینے کی محبت کے بھر بھر کے جام پلاتے ہیں, اور عشق رسول کے جام تقسیم کرتے ہیں الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلہ چکائے, بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دے. حوالہ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 98 حدیث نمبر 5991. تو ہم یعنی شریف کے ساتھ شریف, اور یہ جملہ غلط ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. اسی طرح جو رشتہ دار ہمارے ساتھ بھلائی کرے ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, یہ تو مطلب ادلا بدلی ہوئی. مزہ اس میں کہ وہ برائی کرے ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, اور کتنا پیارا درس ہے. اگر یہ حدیث سے ہم اپنے یعنی کہ عملی جامہ اس کو پہنا دیں اور عمل کرنے والے بن جائے, ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ فضا میں اڑتے ہوئے مدینے پہنچ جائے. لیکن بس یہ باتیں سن کر تو یہ ہوتا ہے کہ بس اب یہی کرنا ہے, اور جب یہ گھومتی ہے کچھ بھی یاد نہیں رہتا. نہیں چھوڑوں گا, دانت توڑ دوں گا, سر پھوڑ دوں گا, کیا سمجھا ہے, کمزور سمجھا ہے, یوں کرتے ہیں. پھر یہ نہیں کرنا, اس طرح بڑے بول بولنے نہیں ہے. ہم کمزور, ہاں کمزور ہی ہیں, کہاں کمزور ہے الحمدللہ. نہیں جو طاقت ہے وہ بدلہ لے سکتا ہو اور پھر بھی بدلہ نہ لے, معاف کر دے اور نرمی کرے اور شرافت سے کام لے, تو یار اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اب کمزور ہے ہی کمزور, اور ڈر رہا ہے, اور پہنچ ہی نہیں سکتا, اور بولتا میں معاف کر دیا, تو وہ تو ظاہر معاف کرے گا نہیں تو جائے گا کہاں. لیکن مزہ اس میں کہ جو بدلہ لے سکتا اور نہ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو ثواب کی امید پر خوش دلی سے قربانی کرے تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کل تم چلے جاؤ گے, کل عید ہے, کل عید ہے, تم ہم سے جدا ہونے والے ہو
Bapadan, मेरा नाम अनिका रहता है। मैं 2 साल की हूँ। मैं मसीने जाना चाहती हूँ। मैं ये दुआ कर दीजिए कि मैं मदीने चली जाऊँ अन्य मम्मा से तान बाबा के साथ। आपका मुझे मदीने बुलाइए। क्या बात है, माशाल्लाह। 2 साल की बच्ची है और इतनी माशाल्लाह साफ गुफ्तगू कर रही है। अल्लाह पाक इसको आलिम आए मुबल्लिगा है, आलिम आए दीन और मुबल्लिगा इस्लाम बनाए माशाल्लाह। हमारे मदीना भी दिखा दे। हमारे हाजी अली भाई की पोती है रुकन शूरा। अल्लाह अल्लाह, अच्छा नहीं, इस बात का फल है ये, इसको ऐसा होना चाहिए माशाल्लाह। ये घराना ही दावत इस्लामी के लिए समझो वक्फ जैसा ही है माशाल्लाह। अल्लाह इनको बरकतें दे, अल्लाह इनको इनके नाना जान दादा जान समेत माँ बाप सबके साथ मदीना दिखा दे। जब पहले वाले ने लब्बैक पढ़ी, पहले बच्चे ने, आजकल तो लब्बैक गूंज रही होगी ना मक्के की गलियों में, और गूंज रही होगी ना, किस किस को पता है गूंज रही होगी। अच्छा, अल्लाह आपको मक्का मदीना दिखा दे। हज करा देगा तो फिर आपको समझ पड़ जाएगी कि अभी गूंज रही होगी या नहीं। अभी लब्बैक से गूंज नहीं रही होगी, अभी अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अभी ये पढ़ते होंगे। वो तो लब्बैक कब बंद होती है हाजी की, पता है किसी को? ये सही बता रहे शहजाद भाई, ये बता रहे माशाअल्लाह। अब समझ आ रही है। लब्बैक जब पहली कंकरी मारते हैं शैतान, बड़े शैतान को ईद के दिन मारते हैं पहली कंकरी, जैसे यानी 7 कंकरियां, पहली कंकरी मारते ही लब्बैक मौकूफ, अब लब्बैक नहीं पड़ी जाएगी। तो यूं इस वक्त सारे के सारे हाजी जो हैं जाहिर है कि वो लब्बैक नहीं पढ़ेंगे। उम्रा भी इन दिनों नहीं हो सकेगा, लेकिन एहराम नहीं बांध सकते उम्रे का। अभी तो ये मनासिक हज में आज इनकी, हमारी 11वीं इनकी 12वीं रात है, तो आज भी 12वीं की भी रमी होती है ना। तो खैर, तो इस तरह मतलब ये कि उम्रे वाले की लब्बैक कब बंद होती है किसी को पता? माशाअल्लाह, वो इस तरह वैसे ही बता रहे हैं। अब मैं तोहफा भी नहीं दे सकता ना किसी को, गिलास हट जाए, कोई से हालात हो जाए ना, ये गिलास क्यों है ये तो समझते ही होंगे, इसमें मजा नहीं आता। उसे मजा वो 1 to 1 बगैर हिजाब के ज्यादा मजा आता है, ये मजबूरी है। तो ये इस तरह भाई बता रहे हैं। हजर अस्वद का पहला बोसा लेते ही, उम्रा करने वाला पहला बोसा लेते ही उसकी लब्बैक मौकूफ होगी, अब लब्बैक उसने नहीं पढ़नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के जरिए मोहम्मद नवाज, माशाअल्लाह, मोहम्मद नवाज सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो लोग ईद वाले दिन अपनी चीज़ों का रेट बढ़ा देते हैं, कहते हैं ईद है ईदी नहीं देंगे, खुशी में सब चलता है, क्या इस तरह ज़बरदस्ती ईदी लेना दुरुस्त है? अपनी चीजों का दाम बढ़ा देते हैं तो ये जबरदस्ती तो नहीं हुआ। सवाल मतलब एक तो ये कि जैसे कि वो रिश्वत लेने वाले उसको ईदी का नाम देते हैं इन दिनों, और काम धंधे वाले वो सब मतलब पोस्टमैन समेत सब ईदियां मांग रहे होते हैं। तो इस पर खैर वो एक जारी तो है उर्फ टाइप का, लेकिन ईदियां मांग रहे होते हैं। तो इस पर खैर वो एक जारी तो है उर्फ टाइप का, लेकिन अब ये जबरदस्ती करेंगे और अगला शर से बचने के लिए वरना बदनाम करेगा, बुरा भला करेगा, तो रिश्वत हो जाएगी इसके हक में, ईदी नहीं रहेगी। और बाद औकात लोग खुशी से भी देते होंगे ईदी, तो वो खुशी से अगर दे रहे हैं और ये खुशी से ले रहा है और
कोई अड़ी नहीं कर रहा तो फिर जायज हो जाएगी। लेकिन ये आजकल वाकई नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाला भी रुकेगा ना, वो ईदी मांगेगा, मैं भी चालान करता हूँ। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे रोडों पे। मैं जब रोड पर था, मगर स्कूटर तो चलाना नहीं आती, लेकिन मुझे पता बहुत कुछ है, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखी भाली है दुनिया। तो गुनाह तो बहुत होते हैं, बहुत किए जाते हैं। रिश्वत देने वाला भी गुनाहगार, लेने वाला भी गुनाहगार। देते भी है ना, अब स्कूटर का लाइसेंस नहीं है तो फिर आप रिश्वत देकर जान छुड़ाते हैं, तो लाइसेंस रखो ना भाई। तो ये क्या, लाइसेंस नहीं रखो और बोले यार इसको दे दूंगा, पकड़ा जाऊंगा, तो नहीं। लाइसेंस के बगैर चलाना, फिर ये ऐसा कानून है कि इसकी इस तरह इसको छोड़ना जायज नहीं है ना। और ये कवानीन हमारे लिए, हमारे काम के, ट्रैफिक के बहुत सारे कवानीन हमारी हिफाजत के लिए, हमारे फायदे के लिए, तो इन पर मतलब अमल करना चाहिए। खाली इसमें होशियारी नहीं करनी चाहिए। अब मैंने वो सिग्नल तोड़ दिया तो मैंने वन वे और ये चला दिया, कोई नहीं बोलता। जब वो सामने वाली गाड़ी कुछ बोलेगी ना, चीख मार के, समझे, और हॉस्पिटल का रास्ता टर्न करा देगी ना आपको, फिर कब्रिस्तान की तरफ रुख करा देगी ना, पता चलेगा कोई नहीं बोलता है, कुछ नहीं होता। तो ये हमारे लिए सर वन वे या जो भी हमारे लिए बेहतर है, हमारे फायदे के, कि हम टकरा न जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के जरिए हमाद इनका सवाल मौसूल हुआ है, कह रहे हैं अगर किसी का ईद के दिन इंतकाल हो जाए तो क्या इसकी कोई खास फजीलत है? वल्लाह आलम, पढ़ा नहीं है। मोहम्मद अय्यूब है, ये कह रहे हैं एक शख्स ने 7 दिन पहले गाय ली, खाने पीने वजन वगैरह के एतबार से बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐब नहीं था। अब आज ज़िबा की तो सारे गोश्त में कीड़े ही कीड़े हैं, क्या कुर्बानी हो गई और गोश्त का क्या करें? अगर गोश्त में ज़ाहिरी तौर पर कोई कुर्बानी में ऐब नहीं था, वो चलकर कुर्बान गाह की तरफ भी चली, कोई इसमें कोई उज़्व अगर 1/3 से ज्यादा कटा हुआ नहीं था, और इस तरह मतलब कोई ऐब नहीं था, तो कुर्बानी तो हो जाएगी। अब अंदर से जो भी निकला, ये कीड़े निकले तो ये तो हैरत की बात है, पहली बार सुना। सारा गोश्त तो कीड़े नहीं बना, कुछ कीड़े निकले होंगे, कोई अंदरूनी मरज होगा उसको। तो इसमें भी हमारे लिए इबरत है कि हमारे मरने के बाद इंसान के बदन में कीड़े पड़ेंगे, और इतने कीड़े पड़ेंगे, इतने कीड़े पड़ेंगे कि सारा गोश्त खा लेंगे, अब कुछ भी बचेगा नहीं। तो ये फिर कीड़े एक दूसरे को खाना शुरू करेंगे। अब जो ताकतवर होगा कमजोर को खाता रहेगा। इसमें ये दुनिया की मिसाल भी सामने हमारे, क्या यहाँ ताकतवर कमजोर को खा रहे हैं। तो खैर वो ताकतवर कीड़ा कमजोरों को खाएगा, यहाँ तक कि ये आखिरकार 2 कीड़े बच जाएंगे जो सबसे ताकतवर थे, बाकी सब खा लिए इन लोगों ने, इन दोनों ने मिलकर। अब ये दोनों, अब भूख लगी क्या करें, अब दोनों लड़ेंगे आपस में, और जो इनमें जो ताकतवर होगा वो कमजोर को खा जाएगा। अब रहा एक कीड़ा, अब ये क्या खाएगा, फिर ये भूखा मर जाएगा। इबरत, ये बातें इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, ये गालिबन आपको मिलेगी इह्या उल उलूम की 5वीं जिल्द में मिल जाएगी। इबरत 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 है। हमारा खूबसूरत बदन है, बाल संवार कर रखे हुए हैं, तेल लगाते हैं, कपड़े में सिलवट नहीं आने देते, प्रेस के बगैर कपड़ा नहीं पहनते, इस्त्री के बगैर। कफन मिट्टी आलूद होगा, बदन सड़ेगा, बाल झड़ेंगे, दांत झड़ जाएंगे, भेजा कीड़े खा जाएंगे, बदन भी कीड़े खा जाएंगे, हुस्न और जमाल सब आन की आन में खाक में मिल जाएगा। अल्लाह करीम हमें नेक बना दे, हमारा आमाल नामा बस पाक साफ हो, अल्लाह की बारगाह में हम सुखरू हों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला
پیارے امیر اہل سنت، آپ سے سوال یہ ہے کہ رمی کرتے وقت اگر کنکری زمین پر گر جائے تو کیا اسے اٹھا کر رمی کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔ گر گئی تو وہ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے ہم لوگ زیادہ لیتے تھے کچھ کنکریاں کے گر جائے تو پھر اس کے بدلے دوسری استعمال کر لی جائے۔ جو کنکریاں گر جاتی ہیں جو مستعمل ہو جاتی ہیں وہ تو نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ مردود ہوتی ہیں، رد کی بھی ہوتی ہیں، اور جو کنکریاں مقبول ہوتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، اٹھا لی جاتی ہیں، یہ تو لکھا ہے۔ اب یہ ہاتھ سے گر گئی، اس کو اٹھانے میں تو کوئی حرج بظاہر لگ نہیں رہا، لیکن خطرہ یہ کہ پبلک ہوگی، کسی کا دھکا لگ جائے گا، آپ کو چل جائیں گے، وہ ایک الگ دوسری بات ہے، لیکن جو گر گئی اپنے ہاتھ سے، یہ کر رہے تھے اور یہ گر گئی، مکروہ قرار دیا ہے۔ اچھا مفتی صاحب فرما رہے کہ وہ بھی مکروہ ہے اس کو اٹھانا۔ یہ کنکریاں مجھے دکھا رہے تھے، یہ تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ تفتیش کروا رہے تھے، کیونکہ وہ کنکری جو ہے نا وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے کنکر لوگ مار رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹی کنکری تھوڑا ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر، کھجور کا جو بیج ہوتا ہے اس کے برابر ہوں، یہ بہت یہ کم ملتی ہے۔ اب بھی یہ بڑے بڑے کنکر نظر آ رہے ہیں، تو جتنا ہو سکے وہ کھجور کے برابر ہی لینی ہے، بلکہ لینی ہے، وہ مل جاتی ہے، تھوڑی تکلیف ہوگی تو ثواب زیادہ ملے گا ڈھونڈنے میں۔ اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھکن سے بندہ چور چور ہوتا ہے، اور تب نیند سے مخور، تھکن تو نیند بھی آتی ہے ساتھ میں، لیکن یہ کہ حکم شریعت پر سر تسلیم خم۔ یہ بڑی وہ گری ہوئی اٹھانے کا آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں، یہ مجھے بھی کنفیوز ہوں میں، یہ جو ہم نے کہا کہ مکروہ ہے، یہ اسی وقت فائنل کریں گے کہ جب کہ ہم کو جزئیہ مل جائے، نہیں اس کا مسئلہ لکھا ہوا مل جائے، ورنہ یہ کس کو ایڈٹ کرنا ہوگا، یا یہ مفتشین دیکھ لیں، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کسی کتاب سے تو پھر باقی رکھیں، ورنہ لیکن یہ حاضرین کی خدمت بھی غرض ہے کہ اس کو یہ ابھی فائنل نہ سمجھے جو ہم نے، کیونکہ وہ جو مار کے جو گری ہے نا وہ تو مردود ہے، وہ نہیں اٹھائی ہے، نہ اٹھائی جائے۔ مردود یہ گالی نہیں ہے، رد کی ہوئی لکھا ہوا اس کو کہ یہ مردود ہے، اور مقبول جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، مقبول کا ضد ہے مردود۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل جو شاپر آئے ہوئے ہیں گائے وغیرہ کا گوشت بانٹنے کے لیے، اس کے اندر عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے عید الاضحیٰ مبارک ہو، اور گائے بکرے وغیرہ بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا، جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا ایسے شاپر آ رہے ہیں، یا وہ گوشت تقسیم کرنا ہوتا ہے نا، تو ایک ہوتا ہے کہ بھئی لکھا ہوا ہو کہ بھئی تحفہ ہے ہمارا یہ عید الاضحیٰ کا۔ ایسی چیزیں بندہ خریدنا چھوڑ دے نا، لوگ تو یہ نہیں چھاپیں گے۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا اب یہ کہ یہ خون آلود اور پھر ڈسٹ بین میں، یہ لکھنا تو مناسب نہیں لگتا، ادب اس کا ہو نہیں سکے گا۔ ویسے ہی نہ لی جائیں، بغیر لکھی ہوئی بہت ملتی ہوں گی، سارا سال تو بغیر لکھی ہوئی تو ملتی ہے۔ اب کوئی لکھائی بھی والی آتی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے، لکھائی کی یہ مصیبت یعنی کہ بڑھ گئی اتنی کہ جو واش روم کا جو ٹشو ہوتا ہے نا گولا، اس کا یہ بھی لکھے ہوئے آتے ہیں، دیکھے میں نے، تو جب بھی یہ بھی خریدے تو دیکھ لے لکھا ہوا تو نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ناپاک کرنے والی چیز، تو اس پہ بھی لکھتے ہیں یار، پتہ نہیں کب آئے گی، زیادہ آ گئی ہے شاید اس لیے لکھتے ہوں۔ ادب بعد اب بانصیب، حروف تہجی جو ہیں، یہ جیسے اردو کے بھی حروف تہجی، ان کا بھی احترام، یہاں تک کہ اب اس میں تو اقوال ایسے ہیں کہ ہر زبان جو الہامی ہے، ہر زبان کا احترام،
लेकिन मुमकिन ही अब तो नहीं रहा ना हर चीज में। अब आप बच बच के कहाँ जाओगे यार। टाइलें जो होती हैं, टाइलें के नीचे लिखा हुआ होता है और टाइलें बनी हुई है मजे से, हम अब तो मुमकिन नहीं है बचे ना। क्या करें, WC कमोड सब पे लिखा होता है, वो वॉश बेसिन इस पे लिखा होता है, वॉश बेसिन वॉश बेसिन, हाथ धोने की कुंडी जो होती है इस पे लिखा, नलों पे कहाँ कहाँ बस हर जगह तक सब लिखा हुआ। एक बार तो मैं चौंका था, कहीं पंजाब में देखा था या कराची, शायद कराची में देखा था, वो जो यही ब्लॉक आते हैं लाल मिट्टी के, इस पे उमर लिखा हुआ था। यकीन माने आप, मैं तो यार फड़क गया, मैंने कहा यार ये कौन है, सब मुकद्दस नाम इसने इस ईंट पे लिखा हुआ है। भाई ये ईंट तो कहाँ कहाँ लगेगी यार। बेचने वालों का भी अब ये कि ये बोलेंगे यार बिकेगी नहीं, क्यों नहीं बिकेगी यार, लिखा हुआ होने से इनको क्या दिलचस्पी बनाने वालों को कि लिखा हुआ हो तो ही लगेगा ये। मेरा नाम वकास अत्तारी है। हजरत साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करने के बाद वो गोश्त जो घर लेके जाते हैं, उसमें से जो हम गाय का गोश्त धोते हैं, जो बकरे का गोश्त धोते हैं, उसके बावजूद भी वो गोश्त में से खून निकल रहा होता है। तो गोश्त में से जो खून निकल रहा होता है उसको किस तरीके से उसको पाक करे। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है कि कुर्बानी का जब हम गोश्त बना रहे होते हैं और जो इनका खून होता है वो कपड़ों पे लग जाए तो क्या इससे नापा की होती है? जवाब इरशाद फरमा दें। दमे मसफूह यानी रगों के अंदर जो बहता खून है ना, वो जब बाहर निकलता है तो वो नापाक होता है। जैसे ज़बा करते वक्त खून निकला तो ये खून नापाक है। अब रहा कि गोश्त के अंदर जो खून रह जाता है, जैसा दोनों सवालों में कहा गया, तो ये पाक होता है, लेकिन ये खाया नहीं जाएगा, इसको फेंक दिया जाए। तो इसको ये नहीं है कि नापाक है तो अब इसको पाक करो, नापाक इसको नहीं कहेंगे, मगर ये इसको धो लिया जाए और खाया ना जाए। और वैसे भी फितरत सलीमा इसको खाना पसंद भी नहीं करेगी, जी भी नहीं चाहेगा कि ये खून जो है रिस रहा है इसमें से। खून भी एक्चुअली ये बिल्कुल गाढ़ा लाल खून नहीं होता, ये थोड़ा पानी मिक्स टाइप का, वो लाइट हल्का सा होता है। ये खून पानी होता है, खून आलूद इस तरह का, तो ये पाक होता है। अच्छा, अब पिछले दिनों मैंने कुछ हराम अज्जा का तस्करा किया था। शायद कुल 22 अज्जा हलाजत हैं, यानी 22 हलाल जानवर के 22 हिस्से जो नापाक हैं, सॉरी, जिनका खाना मना, मकरू, हराम, इस तरह मुख्तलिफ। तो इसकी तफसीलात, ये गोश्त के वो हिस्से जिनका खाना मना है, ये रिसाला। तो इसमें अभी मजीद कुछ 4 चीजें बाकी थी बयान करना, तो उनको मैं अपने अल्फाज में बयान करूंगा। एक तो नुतफा, वजाहत नहीं करूंगा इसकी। दूसरे ये कि नर मादा की पेशाब करने की जगह और वो गंदगी निकालने की पिछली जगह, ये हिस्से जो है ये खाना मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ गुनाह है। ये पूरे हो गए मेरा ख्याल है। हाँ, वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। स्वीडन से रिजवान रस कर रहा हूँ। मेरा मेल सुन से सवाल है कि तकबीर तशरीक क्या है, और यहाँ यूरोप के अंदर चूँकि लोग अमूमन घरों में नमाज़ें पढ़ते हैं या काम की जगह पे पढ़ते हैं, मसाजिद दूर दूर हैं या करीब है नहीं, तो जो इनफरादी तौर पे नमाज़ें पढ़ते हैं, क्या उनके लिए भी ज़रूरी है तकबीर तशरीक पढ़ना? और अगर इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ने वाला तकबीर तशरीक ना पढ़े तो उसके लिए क्या हुक्म है? तफसीलात बयान तो हो चुकी है। अब ये यूरोप और ये मुख्तलिफ ममालिक में वाकई पूरे शहर में मस्जिद मिलना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात।
तो इसमें यह कि जो जमात के साथ जो मस्जिद में नमाज होती है जमात मसनूना के साथ, तो उसमें तो तकबीर तशरीक एक मरतबा सलाम फेरते ही एक मरतबा तो बुलंद आवाज से वाजिब है, 3 मरतबा मस्जिद जो 2 बाकी रहेंगे इनको भी बुलंद आवाज से पढ़े, ये मुस्तहब है, अच्छा है कि पढ़ ले। और जो बगैर जमाअत के पढ़ता है तो उनके लिए वाजिब नहीं है, बल्कि बेहतर है कि ये भी तकबीरें कह ले। औरत के लिए भी बेहतर है, क्योंकि वो तो जमात उन पर तो है नहीं, तो वो बेहतर है कि वो तकबीर तशरीक पढ़े फर्जों के बाद। आपने सवाल करने वाले को पहचाना? गौर नहीं किया मैंने। अब बैरून मुल्क जा रहे थे और एयरपोर्ट पर आपको एक इस्लाम भाई मिले थे यूरोप के, मुशावरत के रुकून है शायद। आपने मेरी बात कराई, मैंने जब आपको कॉल की थी कराची मतार पर, और इन्होंने 12 माह की नियत की थी। तो क्या हुआ फिर? 12 माह का क्या हुआ? इन्होंने 2026 से कहा था कि मैं 12 माह सफर करूंगा। अच्छा, अभी बाकी है टाइम? अभी भी ये है माशाल्लाह, तंजीमी जिम्मेदारी पर और सफर में होते हैं, छुट्टियां लेकर विदाउट पेमेंट, कुछ ना कुछ जदवल, मालियात के जिम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने यूरोप मुशावरत के। मगर मैंने को भी याद दिलाया था, इनसे कुछ बातचीत हुई थी और माशाल्लाह। अरे इनका भी वो निकाल आया था क्योंकि आपकी थोड़ी फ्लाइट लेट हो गई थी, तो ये क्या है अब बैठे हैं चलो, तो ये सारा था। तो ये माशाल्लाह हमारी मुशावरत के रुकन भी है, और अल्लाह ने चाहा तो 1 जनवरी से ये 12 माह काफिले में सफर की इन्होंने इयादा किया था। अब ये अलग बात है कि रिजवान भाई का यूं तस्करा हुआ है, तो अगर ये बढ़ा देंगे तो हम इनके ऊपर छोड़ सकते हैं हम। अल्लाह अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है कि हाजरीन और मदनी चैनल के नाजरीन को तौबा भी करा दें, और वो इस्लाम भाई जो अब तक मुरीद नहीं हुए तो मौका है अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुज़ूर सीदी गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुरीदों में शामिल हो जाएं। अमीर अहले सुन्नत जिस तरह फरमाए, आप इतनी आवाज़ से दोहराएं कि आपके अपने कान सुन लें। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि हमें अपने मुरीदों में शामिल फरमा। आज रात की एक बरकत ये भी है कि जिस गौसे पाक के हम मुरीद बनने की सादत हासिल करेंगे, तो आज इनकी माना 11वीं शरीफ भी है। अफसोस मुझे याद नहीं थी, फिर वो किसी ने वो स्टिकर भेजा था, वो देखा नहीं था मैंने यार, वरना मैं 11वीं शरीफ का वो फातिहा पढ़ लेता, न्यास कर लेता, गुलदस्ता बन जाता, चल भी जाता। अफसोस अलग आज है भी मदनी मुज़ाकरा, लेकिन ज़हन में नहीं रहा। मैंने अभी याद किया तो पता चला कि बनी नहीं है, जब मैं चले तस्करा तो हो गया। अब नहीं हुआ, बस अफसोस। सोचा था कि कोई गौस पाक का अगर कॉल मिल जाए ना, तो मैं बैठे बैठे जो खाया उसके अब तो इसाले सब हो सकता है ना। अभी आपको दे देंगे ना, नाश्ते में करेंगे। अभी बोल दूं ना यार, हाथों हाथ। गौस पाक का तर्ज में शेर ही सुना दीजिएगा ना हुजूर, जिक्र मेरे पीरो मुर्शिद का जिक्र भी हो जाएगा, पीरो मुर्शिद का जिक्र पीरो मुर्शिद की जबान से हो जाएगा। हाँ, वो पहले वो कॉल इरशाद गौस पाक का कोई अर्ज करके बैत हो जाए भी। हाँ, वो मैं उन्होंने वो जैसे मैं चलते चलते फिर थोड़ा पाँव छुट्टे करता हूँ ना, तो आज तो मेरी थक्कन भी थक गई थी। मुझे यूं लगता था कि मैं जाऊंगा कैसे यार, लेकिन थोड़ा बहुत आराम जोहर के बाद मिल गया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं आके बैठ तो गया हूँ, उठने की हिम्मत नहीं है। मैंने उठूंगा तो आजमाइश हो जाएगी, तो इकट्ठा ही बाहर निकलने के लिए उठूंगा इंशाअल्लाह, सहारे से इस्लामी भाई के इंशाअल्लाह। अल्लाह ताकत दे दे तो खैर। आज वो वैसे ही खुसूसी मदनी मुज़ाकरा है भी नहीं आज, इन सबको खा ले खींचनी होंगी।
सबको नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नियाज खालो में साल है, आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाहुल करीम जिंदा बखैर रहे तो। और 14 तारीख 14वीं शब आ रही है, मंगल और बुध की दरमियानी रात। मेरे वालिद मोहतरम हज पर गए थे और लू बहुत चली थी और वफात हुई थी, तो इनके लिए इसाले सवाब कम से कम एक दुरूद शरीफ पढ़कर ही कर देना, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाएगा। फरमाने गौसे आजम, शिकवा शिकायत मत करो, क्योंकि अगर तुम अल्लाह पाक की जात से शिकवा करोगे तो उसकी नजरों से गिर जाओगे, और जिस बला यानी आफत और मुसीबत के सबब गिला किया था वो भी दूर ना होगी। हवाला अल फतहुर रब्बानी सफा 399। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। सुल्तान विलायत पाक, फानूस हिदायत गौसे पाक, है रब की रहमत गौसे पाक, अल्लाह की नेमत गौसे पाक, गौसे पाक गौसे पाक गौसे पाक और गौसे जब ये नारा लग रहा है तब 11 और 26 घड़ी बजा रही है। सुभान अल्लाह, वाह, हाँ यार 11:26 ही है, सुभान अल्लाह। अब 27 हो गई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो या अल्लाह पाक, जो मुर्शिद का इरशाद सुना गया, शेर पढ़ा गया, ये और ये पेन, मैं ये गोश्त पाक का इन सब का इसाले सवाब करता हूँ। मेरे पास जो कोई टूटी फूटी नेकियां हैं वो अपने कर्म के शान शान इसका अजर अता फरमा, और ये सारा अजर सवाब जनाब रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा बवसीला खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसका सवाब तमाम अंबिया मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम साहिबा व ताबिईन व तबई ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन, और खुसूसन बिलखुसूस सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमा, आमीन। बिजाय खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और आज जो खाना खुसूसन रात का खाना खाया हमने, जो भी मिलकर इस पर जो भी सवाब मिला, तो मैं अपने हिस्से के सवाब ही इसाल कर सकता हूँ, दूसरों के कैसे करूँ? इनके भी हिस्से का जो खाया था हमारे पास, ये सब भी सवाब मुफ्ती साहब भी अपने खाने का इसाल सवाब करवाना चाहते हैं। इन सब का भी हाजरीन भी चाहते हैं जो खाया है ना, इनको भी जो सवाब मिला खाने का, नाजरीन को भी नियत करवा दें, नाजरीन भी नियत कर लें, जो नियत कर लें, तो उनके भी खाने का सवाब, कैमरा मैन हमारे जो है इनका भी सबका मतलब खाने का सवाब, आज की कुर्बानियों का सवाब, आज की कुर्बानियों का सवाब, सारी नेकियों का सवाब, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, जिन्होंने 300 बार पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इनका सवाब सब मेरे मुर्शिद गौस पाक को और सारी उम्मत को इनायत फरमा, आमीन। बिजाय खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और ये मेरी पेन का भी हिस्सा हो गया, इंशाअल्लाह किसी सैयद साहब की नजर करना मैंने नियत कर ली थी। मैंने गौस पाक की औलाद होते ना एक तरह से, सैयद साहब तो जाहिर है ये बैठे हुए, निकलेगी कैसे? चलो इन तक मैं किसको दूं जो पहुंच जाए? आप तक कैसे पहुंचे मसला ये, आप दे देंगे, ये पहचान दें, ये जुल्फों वाले सैयद साहब जो है, अब ये जो भी दे दें गौस पाक के नाम पर, चाहे जिंदगी वक्फ कर दें, या भी इनका मैटर है, 12 माह 25 माह जो देना चाहे, या उस वक्त खड़े हो गए तो या भी से रख लो, दारू सुनना वालों संभालो।
جو آپ عطا فرمانا چاہیں. تو آپ کا تو تبرک سیدوں کا تبرک 12 ماہ. ڈیٹ بھی دے دیجئے, تاریخ ہاتھ اگلے سال. اچھا 26 تو مہینہ تاریخ آواز نہیں آ رہی. رمضان شریف کے بعد شوال المکرم میں انشاءاللہ. یہ امانت تو خیر نہیں کہلائے گی, ابھی تو میری ملک پر ہے, میں رکھوا دیتا ہوں ان کے پاس. تو یہ نیاز کا قدم آپ کو انشاءاللہ پیش کریں گے. میں ابھی تو میری ملک ہی ہے, تو میں وہ لکھتا رہتا ہوں اللہ اللہ. عبد القدس بھائی اس وقت ہیں ہمارے ساتھ فرانس کے, تو ابھی وہاں بھی ہے, شاید رات کا بھی باقی ہے, وہاں مغرب اب ہوگی. عبد القدس بھائی آپ کے یہاں مغرب شاید اب ہوگی, ابھی تو آپ کے یہاں مغرب ہوئی بھی نہیں ہوگی. اور 11ویں شریف ہے آپ کے اندر, ہاتھ اٹھا کر بتائیے گا فرانس کے اندر. آج آپ کے یہاں بھی 11ویں تاریخ ہوگی, 12ویں ہوگی, آواز تھوڑی طور پر پہنچے گی. تو آپ بھی اگر وہاں آپ کی بھی 11ویں شریف ہو نہ بھی ہو تو وہاں بھی نیاز شریف کا سلسلہ کیجیے گا. عبد القدس پہ ہماری فرانس مشاورت کے نگران ہیں, سبحان اللہ, ماشاءاللہ انہوں نے جمع کیا اسلامی بھائیوں کو. 11ویں شریف ہے جی. واہ, اچھا آج 11ویں ہے. جی ہاں, کہ امریکہ میں تو آج 12ویں ہے. آج 11ویں, ہاتھ اٹھا کے انہوں نے بتا دیا. آج 11ویں رات ہے. سبحان اللہ. میں سب گوشت پاک کی ماہانہ 11ویں کیا کروں یار, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. جی اچھا حرام ہے, سب حرام ہے. مقرور تحریم لکھا ہوا تھا, وہ میں دیکھ لیتا ہوں. آپ کو بھی تو بھیجا تھا انہوں نے, حاجی طاہر نے. ہاں وہ جی جی وہ کنکریوں کی جو بات ہوئی تھی کہ ہاتھ سے گر گئی, تو چونکہ وہ استعمال تو ہوئی نہیں ہے نا ابھی, تو اس لیے وہ اٹھایا تو مکروہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. البتہ وہ ہجوم کی وجہ سے خطرے میں خود کو نہ ڈالے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہجوم میں کچلا جائے, یہ خطرہ ہوتا ہے. اچھا یہ ہاں حرام لکھا ہے اس پہ, باقی چیزیں جو ہیں وہ مکروہ تحریمی ہیں. جی جی ہاں, وہ میں نے نطفے کو مکروہ تحریمی میں لیا تھا. نطفہ جو ہے اس کا کھانا حرام ہے. باقی جو 3 چیزیں میں نے کی تھی وہ تو بول چکا میں, ان کا کھانا مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ. تو وہاں اس کو ایڈٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ الکریم, اور یہ ایڈجسٹ کر لیجئے گا جو میں نے جملہ کہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدھی بیت. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا, اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
کہا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا ایک درخواست کر دوں سوشل میڈیا والے اور مدنی چینل والے. ابھی جو 11ویں شریف گوشت پاک کا ماہانہ جو ایصال ثواب اگر اس کا گلدستہ بن جائے تو ان تک پہنچ جائے کہ جو اس وقت ہمیں سن نہیں رہے ہوں گے. آج ویسے ہی پوزیشن آپ کے سامنے تو ماہانہ 11ویں کی مزید دھوم مچے گی انشاءاللہ. لبیک انشاءاللہ. اس کو جاری کر دیجئے اللہ کا نام لے کر. اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. آمین. الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ صحرائے مدینہ کراچی میں ہمارے سٹی مشاہد کے نگران اور دیگر اسلام بھائی بھی موجود ہیں جہاں پر کراچی سٹی سے جو کھالیں جمع ہو کر وہاں پہنچ رہی ہیں. نمک بھی لگایا جا رہا ہے. وہاں کچھ اسلام بھائی بھی موجود ہیں جو مدنی مذاکرہ بھی دیکھ رہے ہیں. جی فضل بھائی آواز آ رہی ہے؟ جا رہی ہے. جی الحمدللہ ہم یہاں پر صحرائے مدینہ خال گودام میں موجود ہیں اور اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس کھالیں آئی ہے. بڑی کھالیں بھی آئی ہے, چھوٹی کھالیں بھی آئی ہے اور الحمدللہ یہاں پر جو ہے وہ ٹرک پر لوڈ ہو کر جو ہے یہ آ رہے ہیں اور یہاں پر ٹرک ان لوڈ ہو رہے ہیں اور پورا یہاں پر ہمارے یہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ بڑی کھالیں ہماری رکھی گئی ہے. یہاں پر بڑی کھالیں اتاری جاتی ہے اور سامنے کی طرف جو ہے وہ چھوٹی کھالیں اتاری جاتی ہے. اچھا اس میں 5-7 شیڈ ہمارے چھوٹی کھالوں کے لیے, بقیہ یہ جتنے بھی یہاں شیڈ یہ سارے جو ہیں یہ بڑی کھالوں کے لیے. تو الحمدللہ یہ بڑی کھالوں پر نمک لگایا جاتا ہے اور الحمدللہ ان کو سیو کیا جاتا ہے اور ہمارا کراچی بھر میں ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے. 1470 جو ہے ہمارے سب پوائنٹس ہیں الحمدللہ اور 150 کے قریب جو ہے ہمارے مرکزی پوائنٹ ہے. تو سب پوائنٹس جو ہے ڈیلی پوائنٹس جو ہے وہاں پر اسلامی بھائی کھالے جمع کر کے مرکزی پوائنٹس پر آتے, پھر وہاں سے ٹرک پر لوڈ ہو کر جو ہے وہ الحمدللہ یہاں پر جو ہے خال گودام میں صحرائے مدینہ میں آتے, پھر جو ہے یہاں پر اس پر ورکنگ الحمدللہ شروع کی جاتی ہے. تو آج پہلا دن ہے اور بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ دعوت اسلامی کو کھالیں ملی ہے. آج رات کو بھی انشاءاللہ الکریم کھالوں کی ترکیب ہوگی, کل کا بھی دن ہے, پرسوں بھی انشاءاللہ الکریم کھالیں آئے گی. اللہ پاک دعوت اسلامی کو جو ہے وہ ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. الحمدللہ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے بھی اسلام بھائی الحمدللہ یہاں جماعت ہے اور 1000 سے زیادہ لیبر جو ہے الحمدللہ یہاں پر کام کر رہی ہے اور پھر ان کا بھی پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کے کھانے کی ترکیب بنی ہوئی ہے اور پھر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ان لیبر کو نیکی کی دعوت دے کر نماز کے لیے لے جانا الحمدللہ یہ ترکیب بھی یہاں پر ہوتی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی. ایک دور تھا میرا جب لڑکپن تھا تو سن سن کر کڑتے تھے. کراچی کی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بعض ہوتے تھے جو ادارے جو تھے بہت کھالیں ان کی فرسٹ آتا تھا,
अखबारों में चर्चा, और आज दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह करम हो गया अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अभी 14 ज़िल हज का जो फरमाया, और मदीना चैनल के नाज़रीन जिस तरह हमने सुना था कि अबू अत्तार अमीर सुन्नत के वालिद मोहतरम जो हज पे तशरीफ़ ले गए थे, तो 14 ज़िल हज जो है वो आपका विसाल शरीफ हुआ, तो आपकी सीरत पर मकतबतुल मदीना ने एक रिसाला शाये किया है, फैज़ान अबू अत्तार। फैज़ान अबू अत्तार, इसका हदिया 24 रुपीज़ है, प्राइस जो है इसकी, और ये रिसाला जो है वो दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो इस रिसाले को ज़रूर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह इससे भी मालूमात में इजाफा होगा। ईसाल सवाब का जिस तरह आपने फरमाया था मेरे रसूल से, तो मक्का पाक के हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनका एक मैसेज आया कि इंशाअल्लाह उल करीम में अबू अत्तार के ईसाल सवाब के लिए उम्रा अदा करूँगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मवेशी मंडी मुझे तो याद आ रही है, मैं काश ये मवेशी मंडी में इतने जानवर बचे हुए हैं, सस्ते भी मिल रहे, तो मेरे बाप के इसाले स्वाब के लिए वहां जाकर खरीद कर कुर्बानी करके सैयदों को बांट दे तो और ज्यादा अच्छा है, गरीबों को बांट दे, जो भी चाहे करे, तो यूं भी मेरे वालिद का भला हो जाएगा, इसाले स्वाब होगा, और मवेशी मंडी के दुखियारों का भी भला हो जाएगा। कुछ बकरा, बकरों में मसला नहीं हुआ है, सुना है बड़े जानवर में हुआ है, तो अल्लाह उनको अजर और सवाब देगा, मेरी दिल जो होगी पता चलेगा तो, और अल्लाह पाक बरकत भी देगा इंशाअल्लाह, दोनों जहां में बरकतें मिलेंगी। ऐसे ज़हन में आया मेरे कि ये भी तो इसाले सवाब हो सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरी हसन रजा अटलांटा अमेरिका से अर्ज कर रहा हूँ, आपको तमाम ही मदनी चैनल के नाजरीन को, मौजूद हाजरीन को ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो। सीधी सवाल ये करना था कि यहाँ पर स्लॉटर हाउस में हम कल गए थे कुर्बानी के लिए, तो वहाँ पर एक बात देखी कि जानवर को खड़े खड़े ज़िबा किया जा रहा था। तो पूछना ये था कि जानवर को खड़े खड़े ज़िबा किया जाए तो क्या इससे कुर्बानी पर कोई फ़र्क पड़ता है? जवाब इरशाद फरमाइएगा। साथ एक और बात जो देखने में आई वो ये थी कि अभी जानवर ठंडा नहीं हुआ और उसकी खाल उतारना शुरू कर दी गई थी, तो इस पर तो आपने बारहा इरशाद फरमाया है कि जब तक जानवर ठंडा ना हो तो उसकी खाल वगैरह नहीं उतारनी चाहिए, लेकिन उसके पास रश बहुत ज़्यादा था। तो अब इस हवाले से ये पूछना है कि अगर उसने खाल वगैरह उतारना शुरू कर दी तो क्या इस पर, इसकी वजह से कुर्बानी पर कोई असर पड़ेगा या कुर्बानी हो जाएगी? जज़ाकल्लाहु खैरा, दुआओं में याद रखिएगा। दोनों सूरतों में कुर्बानी तो हो जाएगी, खड़े खड़े ज़बा करना मना है कि ऊंट को खड़े खड़े नहर किया जाता है और बाकी जानवर जो है उनको लिटा कर किबला रुख, और इनका अपने एक तरकीब है, तो ये सुन्नतें इसमें ये सब छूट गई खड़े खड़े करने से, मगर जानवर हलाल हो जाएगा। और माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ये बड़ा मतलब लर्जा देने वाला कि जिंदा अभी है और खाल उधेड़ना, आदमी जरा अपनी खाल खींच कर देखे कितनी तकलीफ होती है, कट लगा के देखे उसको खींचना तस्वुर में नहीं है कि इतनी तकलीफ होगी। तो ये मजलूम बेज़बान किसको फरियाद करेगा, लेकिन आखिरत बचकर बंदा कहाँ जाएगा। थोड़ा वक्त बचाने के लिए ये इस तरह यहाँ भी हो रहा है, अपने यहाँ कराची में भी ऐसा होता है, गाय अभी ज़बा हो रही है और ठंडी नहीं होती, तड़प रही होती है, और इसके यहाँ से खाल काट के इसके दिल की रगें काटने के लिए छुरी घोंप कर इसको ये कोड़ी करना कहते हैं, ये लोग ये कोड़ी करते हैं। इनके ज़ोम फासिद में ये गाय जल्दी ठंडी हो जाती है, हालांकि ज़रूरी नहीं है, हमें बहुत सारी ज़बा हमारे यहाँ भी होती हैं, गाय ठंडी हो जाती है ये ना भी करो तो, लेकिन ऐसा मतलब ये जुल्म है जुल्म।
जानवर की बददुआ मकबूल है। अरे इनकी जबान हमको नहीं समझ में आती। अल्लाह पाक तो सब कुछ जानता है, कितना उसका कहर जोश में आता होगा कि मजलूम जानवरों पर इस तरह करते हैं। ये उसका करम है कि आसमान फट नहीं भरता और जमीन फट नहीं जाती कि बंदा इसमें धंस जाए, ये उसका करम है। वरना हो तो इतना रहा है कि खाली कुर्बानी ही दिनों में नहीं, सारा साल हो रहा होता जुल्म जानवरों पर। अल्लाह पाक हिदायत दे, अक्ल सलीम अता फरमाए। एक जगह का मैंने सुना, एक मुल्क में किसी ने बताया कि हम गए थे कुर्बानी, पाकिस्तान के बाहर की बात कर रहा हूँ, के लिए जानवर तो वही इसी तरह ये मशीन में चलाते हैं इसको, एक लाइन होती है उसमें चलाते हैं, इसको दबोचते हैं और ये सब करते हैं, गिराना बांधना ये नहीं होता। चलो ये तो अपने समझे कि वो ये हो रहा है, लेकिन वो करते बताया गया कि उसकी पिछली टांग इस तरह क्रेन से ये खींचती है और उसको चलाते हैं तो कड़क करके आवाज आती है। ज़बा होने से पहले उसकी रान से उसकी हड्डी जो है ना वो जुदा होती है, टूटती है, इसके बाद ज़बा करते हैं। कांप जाए आदमी की, इतना जुल्म यार। लोग देख रहे होते, कोई बोलता ही कोई नहीं है यार। कोई तिनका थोड़ी है, लकड़ी थोड़ी है, उसको खड़ा करके तोड़ दिया यार, क्या करे आदमी। थोड़ी है, लकड़ी थोड़ी है, उसको खड़ा करके तोड़ दिया यार, क्या करे आदमी। ये उसने अपना मुशाहिदा बताया कि मैंने ये देखा। मीना शरीफ का कई साल पहले मुझे हमारे एक मुबल्लिग ने बताया कि वो गए होंगे मीना में, तो ऊंट को मतलब यानी कि गिराने का तरीका, अब ये मैंने लिखा भी था अपने किसी रिसाले में, अब वो रिसाला खैर छपता नहीं है, छुप गया है। तो वहां बोला वो हबशी टाइप के लोग होते थे, लोहे का डंडा रखते थे या पाइप रखते थे, वो मतलब ऊंट के सर पे दे मारते थे जोर से, वो बिलबिला कर गिरता था, फिर को ज़बा करते थे। ये भी जुल्म है। हमारे यहाँ भी सुना जाता है, बाज ऐसे वैशी किस्म के लोग होते हैं, कुर्बानी करते हैं, फायर करते हैं, पहले फायर करके उसको गिराते हैं तो फिर ज़बा करते हैं। यार तरीका है, इसके क्लिप भी बाजू का आपने देखे होंगे, तरह तरह के अंदाज है यार। जो शरीयत ने हमको तरीका बताया, किबला जो भी लिटाने का इसको तरीका है, इस तरह ज़बा ये करे आदमी सुन्नतों के मुताबिक। तो बांधने में भी हरज नहीं है वो, वरना लेकिन बहुत गलत तरीके से लोग कर रहे हैं। खैर इस तरह भी मतलब गोश्त तो हलाल हो जाएगा, लेकिन अब ये इस तरह इसको ये इस तरह जख्मी करके और टांग पर गोली मारी, अब वो चलने के काबिल नहीं रहा, कुर्बान गाह तक चलने पर या उसका लंगड़ापन जाहिर हो गया है ना, ये सारे हो सकता है कि इसकी ऐसा फॉल्ट हो जाता हो जानवर में ऐब के जो कुर्बानी के काबिल ही ना रहता हो। वो भी जो रान चटखाई ले जाते हुए तो क्या हुआ, तो चल तो सकता नहीं, मुमकिन ही नहीं है। वो मशीन पकड़ के ले जाती है उसको। बड़े अजीब अजीब मतलब वहशियाना अंदाज है। इनके बारे में बोले कौन, हम भी ज्यादा बोल नहीं सकते कि बोलेंगे मुल्क का नाम लेंगे कुछ तो फिर और मसले खड़े हो जाएंगे। बड़ी अजीब हालात है, मुझे पता है, मतलब जाहिर है कि नाम वगैरह। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए, अल्लाह पाक करम फरमाए, हिदायत दे। पता भी नहीं होता होगा, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े साहब लोग, पता नहीं होता होगा क्या क्या हो रहा है, और इनके जानवर भी इसी तरह हो सकता है कटते हों। इस्लाम ने बहुत प्यारा तरीका दिया, लेकिन इस पर अमल नहीं कर रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता
अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरा अंदाजी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है? सवाल नंबर 2, जहन्नमियों को खाने के लिए कौन सी ग़िज़ा दी जाएगी? सवाल नंबर 3, क्या 2 कुहान वाले ऊँट की कुर्बानी जायज़ है? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस टाइम मैंने अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन और फैजान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। 75,000 फरिश्तों का साया, फरमाने शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुसलमान भाई की जरूरत पूरी करने के लिए जाए, अल्लाह पाक 75,000 फरिश्तों के जरिए उस पर साया फरमाता है, जो उसके लिए दुआ करते हैं। वो फारिग होने तक रहमत में छुपा रहता है और जब फारिग होता है तो अल्लाह पाक उसके लिए हज और उम्रे का सवाब लिखता है। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 21 सफ़हात का रिसाला बगैर हज के हज का सवाब पढ़ या सुन ले, उसको माँ बाप और खानदान समेत हर साल हज मबरूर और मकबूल हाजिरी मदीना से मुशर्रफ फरमा और माँ बाप समेत उसकी बेहिसाब मगफिरत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे गरीबों का हज, 100 हज का सवाब, हर बाल के बदले नेकी, 2 हज और 2 उम्रों का सवाब और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 21 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 23 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहुमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसायल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। 6 जून 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, अल्लाह पाक की राह में कुर्बानी करने का सिलसिला किस दौर से शुरू हुआ? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से। सवाल नंबर 2, दुनिया में जितने भी कत्ल हुए या होंगे उन तमाम का गुनाह कत्ल करने वाले के साथ साथ एक और शख्स को भी मिलेगा, बताइए वो कौन है? जवाब, काबिल। सवाल नंबर 3, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान किए जाने के लिए जन्नत से कौन सा जानवर आया था? जवाब, मेंढा। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते अब्दुल गनी अत्तारिया, हैदराबाद सिंध; बिनते मोहम्मद यूनुस अत्तारिया, कामोंकी; मोहसिन अली अत्तारी, लाहौर; बिनते शाकिर अत्तारिया, तरबेला गाजी; फहीम अत्तारी, कराची; बिनते मोहम्मद अतीक अत्तारिया, संजरपुर; जहांगीर अत्तारी, मुल्तान। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी रो के जरिए निकलने वाला नाम बिनते शाकिर अत्तारिया, तरबेला गाजी। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फिजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर माहनामा फिजान मदीना पहुंचाया जाएगा, इंशा अल्लाहुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। या रब्बल मुस्तफ़ा बतफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के मदनी मुज़ाकरे में शिरकत और अब तक जो नामा आमाल में नेकियां हैं और जो इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन अपनी नेकियां मुझे इसाल करें, इन सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक, ये तमाम सवाब हमारी जानिब से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको भी पहुँचा। जुमला अंबिया किराम, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन,
तमाम साहबा व ताबईन, तब ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, वालिदैन मुस्तफ़ा, जमी अहले बैत अतहार, तमाम शहीदान व असीरान करबला, हसनैन करीमैन, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, बिलखुसूस सैयदी मुर्शिदी गौस आज़म, इमाम आज़म, गरीब नवाज, इमाम गज़ाली, इमाम अहल सुन्नत, सदर शरिया, कुतुब मदीना, मुफ्ती अहमद यार ख़ान, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक हाजी जमज़म, दावत इस्लामी के तमाम मरहूम मुबल्लिगीन व मुबल्लिगात, बिलखुसूस हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत के वालिद मरहूम हाजी अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाहि अलैह को भी इसका सवाब पहुँचा। या अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ए करीम अपने करम के सदक़े हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे। या अल्लाह पाक अपनी पसंद का हमें बंदा बना, नेकियों से मोहब्बत और गुनाहों से सच्ची नफ़रत अता फरमा। ए मौला करीम, आज के दिन में जिन आशिकान रसूल ने कुर्बानियाँ पेश की, उन सब कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जिन्होंने दावत इस्लामी के लिए खाले जमा करने में कोशिशें की, जमा की, पहुँचाया और अब भी कोशिशें कर रहे हैं, मज़ीद जो आइंदा दिनों में कोशिशें करेंगे, अल्लाह उसका इनको बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमा, बख्शिश का ज़रिया बना। तेरे दीन की खिदमत के लिए हम सबको कबूल फरमा, हमारी कोशिशें, हमारी भाग दौड़ सब कबूल फरमा और इसका सबको बेहतरीन अजर अता फरमा, बख्शिश अता फरमा, रहमत अता फरमा। ए मौला करीम, दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से हम सबको महफूज फरमा, नमाज़ों पर इस्तिकामत अता फरमा, सुन्नतों पर इस्तिकामत अता फरमा। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का हमें मुखलिस मुबल्लिग बना दे। ए अल्लाह करे प्यारे रब अज़्ज़ व जल, हमारी बीमारियां तकलीफ़ें दूर फरमा और हमारे बीमारों को भी शिफा अता फरमा। जो घरों में अस्पतालों में बीमार पड़े हैं, सारे मरीज़ों को शिफा अता फरमा। हमारी कर्जदारियाँ, बेरोज़गारियाँ, घरेलू नाचाकियाँ, दुख दर्द गम तकलीफ़ें बीमारियाँ सब दूर फरमा। हमारे घरों में अमन व अमान अता फरमा, मोहब्बत प्यार नसीब फरमा। भाई बहनों में, बच्चों में, घर वालों में, वालिदैन और औलाद में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, ए अल्लाह मोहब्बत प्यार उल्फत नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सब के तमाम मुश्किलात पर रहमत की नज़र फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा, रिश्तों की रुकावटें हमारे घरों से दूर फरमा, कल्बी जहनी सुकून अता फरमा। ए अल्लाह मस्जिद आबाद करने वाला बना दे, दावत इस्लामी का दीनी काम करने वाला बना दे, काफिलों में सफ़र करने वाला बना दे। अमीर अहले सुन्नत के अता करदा नेक अमाल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए मौला करीम, हाजियों का सदका जिन्होंने इस साल हज की सआदत हासिल की, अल्लाह आइंदा साल हमें भी मुर्शिद करीम के साथ हज की सआदत नसीब फरमा। बार बार मीठा मीठा मदीना दिखा। अल्लाह करीम, हमारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत को दराज उम्र बिल खैर अता फरमा, इनकी कमज़ोरियाँ दूर फरमा, इनकी हड्डियाँ मजबूत फरमा। या अल्लाह पाक इनको सेहत वाली, आफियत वाली, दीनी खिदमतों वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमा। जिस तरह ये चाहते हैं दावत इस्लामी का दीनी काम करते रहने की तौफीक अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। गुनाहगार हूँ मैं लायक़े जगनो हूँ, गुनाहगार हूँ मैं लायक़े जगनो हूँ, करम से बख्श दे मुझको, न
رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ